झारखंड के दौरे के बाद महाराष्ट्र में सीएम की 3 जनसभाएं। वाशिम, अमरावती, अकोला में प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर अखिलेश यादव का तंज, कहा अंग्रेज चले गए और उन्हें छोड़ गए। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में मिली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी ने जताया दुख। कुंभ में रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे एफआर कैमरे। पहली बार प्रयागराज रेल मंडल लगा रहा एफआरसी फेस रिकॉग्निशन। कैमरों से रखी जाएगी नजर। छठ पर घर जाने के लिए बस अड्डों पर भीड़। 24 घंटे चल रही रोडवेज की बस। एक दिन में करीब 1.5 लाख यात्रियों ने की यात्रा। यूपी में नवंबर महीने में पड़ेगी कम ठंड। दिसंबर जनवरी में बढ़ेगी ठिठुरन। 60 साल पहले माइनस में गया था तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा वायनाड लेकर चलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी क्या कुछ कहने सुन लेते हैं। സഞ്ചാര മേഖലയെ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. You have the potential here not just for tourism because of the beautiful natural beauty, but also for spiritual tourism with your temples and churches in Wayanad, and also for ecotourism. അത് മാത്രമല്ല, വിനോദസഞ്ചാര മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വെച്ച് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, പള്ളികളുണ്ട്, മോസ്കുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ആത്മീയ ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ സാധ്യതയും ഇവിടെയുണ്ട്. And yet basic facilities are also lacking. പക്ഷേ ഇവിടെ അതുപോലെ പല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും കുറവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Better healthcare, better higher education institutions, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനം, അതുപോലെ മെച്ചപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, better facilities and infrastructure for young boys who are playing soccer and other sports. ഫുട്ബോളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് കായിക വിനോദങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. My son plays a lot of soccer. എന്റെ മകൻ ഒരുപാട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളാണ്. So I have been watching soccer for many years. അത് കാരണം എന്താ അറിയോ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. And when I pass children playing soccer here, I can see they're playing with an aggression and energy and great motivation. ഞാൻ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പറ്റി, ഒരുപാട് ഊർജ്ജത്തോടു കൂടി, ഒരുപാട് പ്രചോദനം ശക്തിയോടും ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ കളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. It makes me proud of them. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അവരെ കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നി. I went and saw a little soccer match and I was sitting next to the young boys. And it also made me sad. ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനത് കാണുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തിരുന്ന ഞാനത് കണ്ടത്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഒന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി. Because I felt, why shouldn't they have the facility that any other child gets? അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് वायनाड से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। दबंगों ने एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। महिला को लेकर अस्पताल लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। दबंगों ने एम्बुलेंस चालक व एएमटी को अधमरा कर दिया है। और आपको बता दें, गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया था। महिला को दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस चालक ने 5 से 6 लोगों पर दर्ज कराई है एफआईआर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मोहनलालगंज के अहमद खेड़ा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दबंगों ने एम्बुलेंस चालक व एएमटी को अधमरा किया। बड़ी खबर, गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिला को दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद सामने आई है। एम्बुलेंस चालक ने 5 से 6 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोहनलालगंज के अहमद खेड़ा गांव का पूरा मामला सामने आया है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, दबंगों ने एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, पूरा मामला क्या था? फिलहाल इन दबंगों पर कोई एक्शन हुआ क्या? देखिए, इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है मोहनलाल कोतवाली में गंभीर धाराओं में, और ये एफआईआर छत्रपाल और उसके साथ साथ 5 से 6 अज्ञात लोगों पर दर्ज की गई है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि कल देर शाम मोहनलाल के एक गांव से गर्भवती महिला को एम्बुलेंस चालक और जो ईएमटी होते हैं, जो एम्बुलेंस में तैनात होते हैं डॉक्टर, वो एक गर्भवती महिला को लेकर के सीएससी मोहनलालगंज जा रहे थे। इतने में एक बीच में गांव पड़ता है और उसी गांव में एम्बुलेंस का और एक बाइक का कुछ टकराव होने को लेकर के विवाद हुआ। और वहां पर जो नशे में धुत मौजूद लोग थे, जो एम्बुलेंस चालक अंसराज ने बताया कि उन लोगों ने उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ की। एम्बुलेंस जो थी उसमें काफी ज्यादा उसमें शीशे तोड़े, उनको मारा पीटा। जो ईएमटी देवेंद्र यादव थे, जो हंसराज थे एम्बुलेंस चालक, उनको लहूलुहान कर दिया। इस पूरे मामले पर जब मौके पर पुलिस पहुंची थी तो एम्बुलेंस चालक को और ईएमटी को, दोनों को एम्बुलेंस में भर करके उस दरोगा ने, आशुतोष जो है, उनको सीएससी अस्पताल पहुंचाया और वहां पर इलाज चला। तो जरूर पुलिस इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से भी ले रही है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक फिलहाल इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन गनीमत रही कि पुलिस का इतनी जल्द एक्शन लेना, पुलिस का इतनी जल्दी घटनास्थल पर पहुंचना कहीं ना कहीं उस महिला को भी बचा दिया था। और जब महिला सीएससी अस्पताल पहुंची तो 10 मिनट बाद उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। तो डॉक्टरों का भी ये कहना था कि वक्त रहते अगर महिला को अस्पताल ना पहुंचाया जा सकता तो जरूर एक बड़ी गंभीर घटना भी हो सकती थी। तो इस पूरे प्रकरण में फिलहाल अभी पुलिस की जो कार्रवाई है वो एफआईआर तक हुई है। फिलहाल सभी लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। महिला को लेकर दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे थे लोग। दबंगों ने एम्बुलेंस चालक व ईएमटी को अधमरा किया था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस कमिश्नरेट के 92 पूजा स्थलों पर होगा आयोजन और 4 दिन चलने वाले आयोजन के लिए सभी सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर के सभी घाटों और आयोजन स्थलों का निरीक्षण भी हो चुका है। पुलिस आयुक्त ने प्रमुख स्थलों पर जाकर सभी व्यवस्थाएं देखी है। निरीक्षण में पुलिस के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी रहे हैं। आयोजन कमेटी के साथ बैठक कर सभी समस्याएं निपटाई गईं। सभी नहरों और नदी घाटों पर लगाया गया पर्याप्त पुलिस बल। पीएसए के मोटर बोट और गोताखोरों को मुस्तैद किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट के 92 पूजा स्थलों पर आयोजन होगा। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से आयोजन पर रखी जा रही है नजर। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके पुख्ता की जा रही सुरक्षा। एंटी रोमियो टीमें महिला सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करेंगी। हमारे साथ शिवा शर्मा लगातार बने हुए। शिवा, सुरक्षा के लिहाज से वो सारे इंतजाम किए गए हैं जो होने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी होने वाली है। देखिए, छठ पूजा के त्योहार को लेकर के लखनऊ पुलिस और खासतौर से सरकार भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सजग है कि किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। इसीलिए लखनऊ के साथ साथ जो तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वहां पर पर्याप्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, आयोजन स्थल पर किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, उसके लिए नगर निगम जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है और वहां का जो स्थानीय विभाग होता है उसके साथ मिलकर के सभी लोगों को काम करने के निर्देश दिए गए थे। और चूंकि कल छठ पूजा का पर्व शुरू होगा, लखनऊ की अगर बात की जाए तो कल खुद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लखनऊ में लक्ष्मण मेला स्थल है, जो छठ पर्व का जो स्थल है, जो वहां पर छठ पूजा मनाई जाती है, और इस स्थल पर बच्चों से लेकर के महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग आते हैं और इसकी संख्या तादाद में जो होती है वो लाखों के ऊपर होती है। तो कल जब मुख्यमंत्री आएंगे उनको देखते हुए भी यहाँ के जो पूरे इंतजाम है, पुलिस के साथ साथ जो एलडी की टीम है, नगर निगम की टीम है, जल निगम के लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, सभी लोग एकजुट होकर के पूरा काम कर रहे हैं। पूरी भव्य तैयारियां कर ली गई कि किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर पूजा करने आता है, जो लोग आते हैं, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। इसके चलते जो पर्याप्त पुलिस बल है, पीएसी की जो टुकड़ियां हैं, मोटर बोट है, चूंकि गोमती नदी के किनारे ये पूरी पूजा होती है, तो आवश्यकता कभी कभी ये भी होती है कि पूजा करते वक्त कोई फिसल ना जाए, कोई नदी के बहाव में ना जाए, इसलिए गोताखोरों की भी जो टीम है उसको तैनात किया गया है। तो पूरी सुरक्षा के साथ इस पर्व को मनाया जाना है और लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा होनी है उसको लेकर के सभी तरीके के इंतजाम पुलिस बल के साथ साथ जो अन्य विभाग है उसको लेकर कर रहे हैं। और खासतौर से ये बात बहुत जरूरी कहनी होगी कि लखनऊ के अंदर सिर्फ एक नहीं, 92 पूजा स्थल ऐसे है लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस कमिश्नरेट के अलग अलग स्थलों पर पूजा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आयोजन कमेटी के साथ बैठक कर सभी समस्याएं निपटाई गई हैं। और अब सीधा आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहने Most सुन रहे important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. And I said, oh, no. And I said, do me a favor, do you mind holding for a couple of minutes? I want to see this. I thought it was a space-age movie or something. I put the phone down. Bad part, I didn't pick it up for 45 minutes, and he was holding. But this spaceship came down, and I saw those engines firing, and it looked like it was over, it was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side, and I put it straight, and it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes. It was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated, the water. This was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon, and I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. So, and it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have up here today the U.S. Open champion. He's a fantastic golfer. He's slightly longer than me. It's a ball a little bit longer than me. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. What happened to Bryson? Where is he? Bryson. Oh, he was shot. He's hitting balls. Oh, he's on the way. He's hitting balls. Bryson. Oh, look at him. He's got a great career going. Great U.S. Open, Bryson. That's a fantastic job. And we also have a man, Dana White, who is done some job. He's a tough guy. So Dana started UFC and came to me, do you mind if I use your... Nobody wanted to give him a rinse because they said it's a rough sport, a little rough. And I helped him out a little bit, and I went
And I said, this is the roughest sport I've ever seen, but I began to like it, and he loved it, and nobody's done a better job in sports. And you know, he's a very motivational kind of a guy, what he does. He gets these fighters, and they really go at it, and it's become one of the most successful sports enterprises anywhere at any time. It's doing so well. I'd like to ask Dana just to say a couple of words, because people love to hear from him. Dana, please. Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bustin' with the Boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you. तो अमेरिका से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अपनी खुशी का इजहार किया है और यहां पर उनकी ओर से एलन मस्क का भी शुक्रिया अदा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर महाराजगंज से आपको हम बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का आज दौरा है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात करेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक थे इरफान सोलंकी और सपा ने उपचुनाव में इरफान की पत्नी को बनाया है प्रत्याशी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम मानी जा रही है मुलाकात। आज आना है इरफान पर फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराजगंज से खबर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज इरफान सोलंकी से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। उनका रुख गलत है। ब्रजेश, बेहद खास आज की इस मुलाकात को माना जा रहा है। बताया जा रहा है आज फैसला भी आने वाला है और उससे पहले माता प्रसाद पांडे की मुलाकात किन चीजों को लेकर होने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे जो है वो जिला जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद से जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, गरिमा जो है यूपी विधानसभा उपचुनाव होना है, 20 तारीख को होना है और सीसामऊ विधानसभा से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। तो उसको लेके जो है माता प्रसाद पांडे इरफान सोलंकी से मुलाकात हो रहा है और चुनाव की रणनीति भी बनेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही माता प्रसाद पांडे जो है जिला जेल में गए हैं और उनसे मुलाकात का दौर चालू है। जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर सपा ने उपचुनाव में इरफान की पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर सीतापुर से आपको हम बताते हैं। नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। रामगढ़ चेनीमल के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। विधायक और चेयरमैन ने किया सत्र का शुभारंभ। चेनीमल में गन्ना खरीद और पेराई होगी शुरू। विधायकों ने किसानों को माला पहनाकर स्वागत किया। शुभारंभ पर मिल स्टाफ सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। नवीन पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। रामगढ़ चेनीमल के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर। नवीन पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी। रामगढ़ चीनी के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ होने की बात सामने आई है। विधायक और चेयरमैन ने सत्र का शुभारंभ किया।
रायबरेली से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर छात्रा ने एसपी से शिकायत की है। शिक्षक की शिकायत किए जाने के बाद सामने आई है। छात्रा ने शिक्षक पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। शिक्षक पर अभद्रता व अपशब्दों के प्रयोग का आरोप लगाए जाने के बाद सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिक्षक पर अभद्रता व अपशब्दों के प्रयोग की बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली में सुनवाई न होने पर एसपी से लगाई गुहार। कक्षा 8 की छात्रा बताई जाती है पीड़ित छात्रा। स्कूल से भगाकर अपमानित करने का भी आरोप है। छात्रा ने एसपी से की शिक्षक की शिकायत। बड़ी खबर, कक्षा 8 की छात्रा बताई जाती है बड़ी छात्रा। दलमऊ क्षेत्र के भगीरथी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर डीएम एसपी के निर्देश पर आबकारी टीम की कार्रवाई। अवैध शराब की रोकथाम के लिए चलाया अभियान। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में अभियान जारी। आबकारी इंस्पेक्टर ने ग्राम बाग लकुला में दबिश दी है। 100 किलोग्राम कच्ची शराब लहन को नष्ट किया है। टीम ने 32 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया है। आबकारी टीम ने 2 अभियोग भी पंजीकृत किए हैं। शराब ठेकों पर जाकर टीम ने औचक निरीक्षण भी किया है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। डिवाइडर पार खड़ी कर गिट्टी लदा ट्रक पलटा। कार में बैठे 4 युवकों ने कार से निकलकर जान बचाई है। ट्रक चालक को युवकों ने पुलिस के हवाले किया। सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई चौराहे का ये पूरा मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। डिवाइडर पर खड़ी कार पर गिट्टी लदा ट्रक पलटा है। गाजियाबाद से खबर, टाइपिस्टों ने दिया अधिवक्ताओं को समर्थन। काम बंद कर अधिवक्ताओं की हड़ताल में शामिल हुए। जिससे विवाद के बाद पुलिस ने किया था लाठीचार्ज और पुलिस की लाठीचार्ज में कई अधिवक्ता घायल हो गए थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की बात भी कही गई है। तो यह अहम खबर गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काम बंद कर अधिवक्ताओं की हड़ताल में शामिल हुए। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। पुलिस की लाठीचार्ज में कई अधिवक्ताओं के घायल होने की भी बात सामने आई है। जयवीर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, मैं आपको बता दें कि जो गाजियाबाद कलेक्टर जिला न्यायालय का जो मामला है, अब ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों इस हड़ताल में तमाम जनपद में, उत्तर प्रदेश में हड़ताल रही थी और अब हालांकि अन्य जनपदों में तो हड़ताल खुल चुकी है, लेकिन गाजियाबाद में अभी भी हड़ताल जारी है। और लगातार जो अधिवक्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो जिला जज है उनका तबादला नहीं होगा, वहीं जो इस मामले में जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया था उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में जो कोर्ट में बैठने वाले जो स्टेनोज हैं, वो स्टेनो वकीलों के समर्थन में इस हड़ताल पर बैठ चुके। तो कहीं ना कहीं हड़ताल जो है अभी बढ़ती जा रही है। वहीं जितने भी जो लोग हैं, अगर बात करें तो जो कारागार है वहां पर लगातार जो भीड़ है वो कैदियों की बढ़ती जा रही है। जो कार्य हैं वो रुके हुए हैं। और अधिवक्ताओं की बात करें, अधिवक्ता हड़ताल पर है, तो जिस तरह से लगातार जो हड़ताल है इसका जो बढ़ रही है, इससे तमाम समस्याएं अन्य लोगों को के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी आ रही है। क्योंकि पुलिसकर्मी भी अब जो न्यायालय है, जो कोर्ट परिसर उसमें जाने से बच रहे हैं, क्योंकि पहले भी तमाम तरह के विवाद यहाँ पर हो चुके हैं, जिसको देखकर पुलिसकर्मी वहां पर इसलिए नहीं जा रहे कि
कहीं ना कहीं पुलिस और वकीलों का दोबारा टकराव न हो जाए। तो कहीं ना कहीं स्थिति हालत जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो वकील की हड़ताल है बड़ा रूप ले रही है। और अब देखना होगा कि जो पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध जिस तरह कार्रवाई की मांग अधिवक्ता कर रहे हैं, जिला जज के तबादले की बात अधिवक्ता कर रहे हैं, इस पर तो सरकार है क्या निर्णय लेगी और किस तरह से, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गाजियाबाद पहुंचे थे और इन्होंने भी अधिवक्ताओं के साथ इस बात को अन्याय बताया था और अधिवक्ताओं के समर्थन में कहीं ना कहीं अखिलेश भी नजर आ रहे थे। तो जिस तरह से राजनीतिक जो हालात है वो बन रहे हैं, जिनके चलते जो विपक्ष के जो नेता है वो भी इन अधिवक्ताओं के समर्थन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होगी और सरकार का निर्णय क्या होगा। जी गरिमा, बहुत शुक्रिया जयवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। काम बंद कर अधिवक्ताओं के हड़ताल में शामिल होने की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों